Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in the previous video we have completed reading our first chapter, that is A Letter to God. Okay, so we were reading about Lancho, who is a farmer, and his crops, his fields, everything was destroyed because of bad weather, because of a hailstorm. Okay, and then he wrote a letter to God because he was having very deep faith in God. He was confident that God is there to help everyone. God is there to look after each and every person. Okay, that's why he wrote a letter to God, and in that letter he asked for 100 pesos. Okay, and that letter was read by the postman and the postmaster, and the postmaster, after reading the letter, he decided that now he will write the letter, he will answer the letter, he will reply the letter on behalf of the God. Okay, so he wrote the letter and he collected money, but he could collect only 70 pesos. So he sent those 17 pesos in an envelope to Lancho. Okay, and when Lancho got the envelope and he counted the money and he find out that there are only 70 pesos, he became very angry. And what did he think? He thought that the post office employees, the post office staff are very dishonest, they are cheater, and they stole his 30 pesos. Okay, so he wrote one more letter to God asking for the remaining amount, that is 30 pesos, and one more request that he made in that letter, that in that letter to God, to send that money this time not by the letters, not by using the mail services, because he said in his letter that the post office employees are like crooks, they are dishonest people. Okay, so this was the story, very interesting story was that, and we have read this story, and in this video student we will see the comprehension part, we will solve the questions that are given in the chapter. Okay, so let's begin. Question 1. What did Lancho hope for? Okay, so first question is that the Lancho, it is the character, our protagonist, are the hero of the story. So what was his hope? What was the thing that was there in his heart? He was expecting for what? Okay, so hope होता है आशा करना, उम्मीद करना. So हमारा क्वेश्चन है कि Lancho किस चीज़ की आशा कर रहा था, किस चीज़ की उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी. Okay, let's see the answer. Lancho hoped for water in the form of rain for his crops. So the thing that was needed for Lancho, that was needed for his fields, was the rain. So he was hoping for good rain, so he was hoping for water, and water in the form of rain, and that rain was needed for his crops, for his fields. Okay, so वो किस चीज़ की आशा कर रहा था? वो आशा कर रहा था कि जल्दी ही बहुत अच्छी बारिश हो जाए, क्योंकि उसकी जो फील्ड्स थे, जो राइप कॉर्न के फील्ड्स थे, वो रेडी थे बिल्कुल, और बहुत सारा पानी उनको चाहिए था. So he was waiting that there should be a good rainfall. Okay. Next question. Why did Lancho say the raindrops were like new coins? So we have read in the chapter that when it was raining and Lancho went out to feel the rain, to touch the raindrops, and when he came back, what did he say? He said that the raindrops are like new coins. Okay, so he compared the water drops, the raindrops, to the new coins, right? उसने compare किया था ना कि बाहर सिर्फ बारिश नहीं हो रही, सिर्फ पानी नहीं आ रहा स्काई से, बल्कि एक्चुअल में दे आर न्यू कॉइन्स. तो उसने ऐसा क्यों कहा, उसने वाटर ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर क्यों किया था? ओके, लेट्स सी द आंसर. He said this because his crop really needed rain for being a good harvest. The reason why was he comparing the raindrops to new coins is that his crop really needed rain for being a good harvest. So उसके जो खेत थे वो बिल्कुल रेडी थे, और एक अच्छी फसल के लिए उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. So when it rained, he saw it in the form of new coins. So finally when it started raining, he was very happy, and he saw that they were not only the water drops, but they were like the new coins for him. He could have a good money if he had a good harvest, and it was very clear that if it is raining, his field will have a good water, and then definitely he
will earn a good money because of his good harvest. Okay, तो अच्छी बारिश का मतलब था अच्छी फसल, और अच्छी फसल का मतलब था बहुत ज़्यादा मनी वो अर्न कर लेगा. इसीलिए उसने कहा था कि वो सिर्फ वाटर ड्रॉप्स नहीं है, बल्कि वो न्यू कॉइन्स हैं, वो मनी है जो कि स्काई से गिर रहा है खेतों में. ओके, तो ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि अगर बारिश अच्छी होगी तो पानी अच्छा मिलेगा खेतों को, पानी अच्छा मिलेगा तो फसल अच्छी होगी, और अगर फसल अच्छी होगी तो डेफिनेटली वो उस फसल को बेच पाएगा और वो बहुत सारा मनी वो अर्न कर पाएगा. इसलिए वो जो बारिश की बूंदें थी, वो जो वाटर ड्रॉप्स थी, वो उसको एक्चुअल में न्यू कॉइन्स जैसे लग रहे थे, कि उसको लग रहा था कि मेरे खेतों में कॉइन्स की बारिश हो रही है, मेरे खेतों में मनी बरस रहा है, क्योंकि अच्छी बारिश का मतलब था अच्छा मनी. ओके, दैट्स व्हाई ही कंपेयर्ड एंड ही सेड दैट दीज आर नॉट ओनली वाटर ड्रॉप्स और रेन ड्रॉप्स, बट दीज आर एक्चुअली न्यू कॉइन्स. राइट. Next question, how did the rain change? What happened to Lancho's fields? Okay, so students, now we have to tell that when it was raining, what happened suddenly? How did the rain change? And when the rain changed, what happened to Lancho's fields? Okay, तो पहले तो बारिश हो रही थी, बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, जिसको देख के लैंचो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, सेटिस्फाइड था. ओके, तो सडनली बारिश जो थी वो चेंज कैसे हो गई थी, क्या चेंजेस हो गए थे, और उन चेंजेस की रीज़न की वजह से लैंचो के फील्ड्स पे क्या हुआ, लैंचो के फील्ड्स में क्या हो जाता है उस वेदर के चेंज होने से, बारिश के चेंज होने से. ओके, लेट्स सी द आंसर. द रेन चेंज इनटू अ हेल स्टॉर्म. सो सडनली द वेदर चेंज, सडनली देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड एंड द रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म. तो अभी तक जहाँ बारिश हो रही थी, सडनली वेदर चेंज हो जाता है, मौसम चेंज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग विंड वहाँ चलने लगती है, और बारिश के साथ साथ वहाँ पे हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं, हेल स्टॉर्म आ जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओले गिरने लगते हैं. Hails fell on the house, the garden, the hillside and the cornfield, and everywhere there was only hailstones that could be seen on the house, the garden, the hillside and the cornfield. तो सब जगह सिर्फ ओले ही ओले थे जो कि दिखाई दे रहे थे, इतने ज़्यादा ओले गिरे थे. हमने पढ़ा था for 1 hour जो था वो हेल स्टॉर्म वहाँ पे कंटिन्यू रहा था. दैट्स वाई एवरीवेयर ओनली हेल स्टोन्स कुड बी सीन, और हर जगह सिर्फ ओले ही दिखाई दे रहे थे. दे डिस्ट्रॉयड लैंचोस फील्ड्स कंप्लीटली. ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाट हैपेंड टू लैंचोस फील्ड्स. सो व्हाट हैपेंड, द हेल स्टोन डिस्ट्रॉयड लैंचोस फील्ड्स कंप्लीटली. तो हेल स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ था, जो लैंचो के फील्ड्स थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे, उसके फील्ड्स में कुछ भी नहीं बचा था. उसकी फसल जो कितनी अच्छी होने वाली थी, वो बिल्कुल एश्योर्ड था कि इस साल वो बहुत अच्छी फसल उसके खेतों में होगी, वो बहुत अच्छी मनी अर्न करेगा. तो उसकी सारी होप जो थी वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था उसके खेतों के साथ में. तो वेदर में क्या चेंज हुआ था, अभी तक जो बारिश हो रही थी सडनली वो चेंज हो गई थी किसमें, हेल स्टॉर्म में. और उस हेल स्टॉर्म ने क्या किया था, उस हेल स्टॉर्म ने लैंचो के फील्ड्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what were Lancho's feelings when the hail stopped? Okay, so when finally after 1 hour, when finally the hailstones passed, or we can say the hailstorm stopped, and Lancho went out to his fields and he examined and he saw the destroyed fields in front of him, that what was there in his heart, what was the feelings that was there in Lancho's heart. Okay, तो जब लैंचो ने देखा कि उसकी जो खेत है वो completely destroy हो चुके हैं, जब फाइनली एक 1 आवर के बाद में जब वो हेल स्टॉर्म रुक जाता है और लैंचो अपने फील्ड्स को देखता है, तो वो क्या फील करता है, क्या फीलिंग्स थी उसके मन में. लेट्स सी द आंसर. लैंचो फेल कम्प्लीटली ब्रोकन. तो लैंचो की फीलिंग्स क्या थी अपने फील्ड्स को देख के, ही वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन, वो बहुत ज़्यादा सैड था. द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, एंड व्हाट वाज द रीज़न, बिकॉज ऑफ दैट हेल स्टॉर्म ही वॉज लेफ्ट नथिंग विद, ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग, हिज फील्ड्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. ही फेल्ट दैट दे वुड हैव नो कॉर्न और सीड दैट ईयर, एंड दैट्स वाई ही वॉज थिंकिंग दैट ईयर दे विल
will die because of hunger because they will have no corn or no seed. तो उसके जो fields थे वो completely destroy हो चुके थे, तो उसे लग रहा था कि इस साल हमारे पास खाने के लिए बिल्कुल भी कॉर्न नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी ग्रेन नहीं है, बिल्कुल भी सीड नहीं है, तो हम हमारी फैमिली में सब बच्चों को और हम सब क्या खाएंगे, हम कैसे अपना काम चलाएंगे. He saw death before him and his family. That's why उसको क्या लग रहा था कि उसकी फैमिली के सामने अब डेथ खड़ी है, क्योंकि अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है. फील्ड्स जो थे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे, उसके जो राइप कॉर्न था, उसके जो राइप कॉर्न की क्रॉप थी वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. तो उसको लग रहा था कि इस साल हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न नहीं है, सीड नहीं है, तो इस बार हम क्या खाएंगे, हम कैसे क्या करेंगे. और उसको लग रहा था कि हमारे परिवार को हमारा जो परिवार है वो सब बिकॉज ऑफ हंगर हम लोग मर जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who or what did Lancho have faith in? What did he do? So next question is, we know that after reading the chapter, we all know that Lancho had very deep faith in his heart. So we have to tell that he had a very deep faith for whom, okay, or for what. So his faith was for whom or for what, okay. And we also have to tell that what did he do because of his faith, because of his confidence, what did he do. ओके, सो हमें बताना है कि लैंचो के मन में जो इतना डीप फेथ था वो किसके लिए था, किस व्यक्ति के लिए या किस वस्तु के लिए उसके मन में इतना डीप फेथ था. और सेकंड हमें बताना है कि अपने फेथ की वजह से उसने क्या किया. ओके, आंसर. Lancho had full and complete faith in God. Okay, so Lancho had very deep faith in his heart. He was very confident and just because in God. Okay, he felt that God's eyes saw everything. और उसके मन में इतना गहरा, इतना deep faith था कि उसको लगता था कि God जो है वो सब कुछ देखते हैं. God is there to take care of everyone. God is there, to look after everyone, and God knows everything. God can see each and everything. So he wrote a letter to God, and because of his deep faith, what did he do? He wrote a letter to God. Okay, so उसका जो deep faith था वो किसके लिए था? God के लिए था. और अपने faith की वजह से उसने क्या किया? उसने एक letter लिखा God के नाम. Okay, next question. Who read the letter? So Lancho wrote a letter to God, addressing to God. So our question is that who read the letter? Okay, answer. The postman and the postmaster read Lancho's letter to God. तो Lancho का letter किसने पढ़ा था? Lancho का letter सबसे पहले postman को मिलता है, और postman वो letter किसको दिखाता है? अपने boss को दिखाता है, postmaster को दिखाता है. तो Lancho का letter किसने पढ़ा? postman, और उसके बॉस पोस्टमास्टर ने पढ़ा था लैंचो का लेटर, जो लिखा गया था किसके नाम? गॉड के नाम. ओके, सो लैंचो रोट अ लेटर टू गॉड, एंड द पोस्टमैन एंड द पोस्टमास्टर दे बोथ रेड द लेटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What did the postmaster do then? So next question is that after reading the letter, when the postmaster read the letter of Lancho that was written to God, so after reading the letter, what did he do? What was his plan? What was there in his mind? So letter पढ़ने के बाद postmaster ने क्या किया? Answer. The postmaster helped Lancho by sending money on behalf of God. So we have read in the chapter that when the postmaster read the letter, so at first he started laughing very loudly because he found the letter to be very funny. It was very amusing for him that a person wrote a letter addressing to God, so he found it very funny. But immediately he got serious and he realized that that person has such a deep faith in his heart. He is such confident about this that he is writing a letter to God. God will receive the letter and he will write back to him. So the postmaster was very surprised to see his deep faith, his confidence. So that's why he decided that now he will write the letter, he will answer this letter, so that his confidence in God, his faith in God may remain intact. Okay, so postmaster ने क्या किया? उसने लैंचो की हेल्प करी थी, उसने मनी भेजे थे उसे, लेकिन कैसे? ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. उसने गॉड की तरफ से वो लेटर लिखा था. लैंचो हैड रिटन अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम विथ मनी. सो लैंचो wrote the letter, and
in that letter, Lancho asked for 100 pesos. The postmaster didn't want to shake Lancho's faith in God. So when the postmaster read the letter, तो फिर postmaster बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो Lancho का इतना विश्वास है God में, वो विश्वास बिल्कुल भी शेक हो, उसका वो विश्वास टूट जाए. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस लेटर का आंसर देंगे गॉड की तरफ से. सो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज एंड सेंट टू Lancho. So 100 pesos is actually a very big amount. That's why he collected money from his friends, from his employees, and he himself contributed in that amount. And they all collected 70 pesos, and that amount he sent to Lancho. So postmaster चाहते थे कि उसका जो विश्वास है गॉड में वो बना रहे, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे. इसीलिए उन्होंने गॉड की तरफ से लेटर लिखा. गॉड की तरफ से उन्होंने 70 पैसे आपस में कलेक्ट करके, कंट्रीब्यूट करके वो 70 पैसे उन्होंने Lancho को सेंड कर दिए थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Was Lancho surprised to find a letter for him with money in it? Okay, so next question is that when Lancho got the letter, when he went to the town, when he went to the post office and he asked that if there is any letter for him, and then the postmaster gave him the letter, okay, that was written by the postmaster. And what did Lancho think? Lancho thought that it is a letter that was written by God himself. So we have to tell that when Lancho got the letter and the money in that letter, was he surprised? There was a feeling of surprise in his face when he got the letter with money in it. Okay, so हमें बताना है कि जब Lancho को वो लेटर मिलता है, और Lancho को तो क्या लग रहा था कि वो लेटर गॉड ने ही लिखा है, गॉड ने ही उसको वो 70 पैसोस भेजे हैं. तो जब उसे वो लेटर मिलता है तो क्या वो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी सरप्राइज था कि गॉड ने उसको लेटर लिखा है? उसकी क्या फीलिंग्स थी, वो क्या फील कर रहा था? आंसर, no, Lancho was not surprised to find a letter for him with money. So our answer is that no. When the postmaster gave him the letter and Lancho thought that this letter is from God, he was not at all surprised. There was not the slightest feeling of surprise on his face. It was because he had full and complete faith in God. And why was he not surprised? Because he was having very deep faith. He was very confident that God will write back to him. That was the reason that he wrote a letter to God. तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था. जब उसने अपना फर्स्ट लेटर लिखा था, वो इसे विश्वास से लिखा था कि मैं गॉड को लेटर लिख रहा हूँ, ये लेटर गॉड को मिलेगा, गॉड पढ़ेंगे और वो मुझे 100 पैसोस भेज देंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ, बिकॉज ऑफ दैट डीप फेथ, ही रोट हिज फर्स्ट लेटर. सो ही वॉज वेरी श्योर दैट गॉड विल राइट बैक टू हिम. इसीलिए जब उसको वो लेटर मिलता है, जो कि वो उसे लग रहा था कि लेटर गॉड ने भेजा है, तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि गॉड उसे लेटर भेजेंगे. ही न्यू दैट गॉड सो एवरीथिंग इवन इन वंस कॉन्शियस. और उसका जो डीप फेथ था, उसका जो इतना गहरा विश्वास था गॉड में, वो क्या था? उसे लगता था कि गॉड जो है वो सब जगह हैं, गॉड सब कुछ देख रहे हैं, हर व्यक्ति के बारे में वो जानते हैं, और यहाँ तक कि हमारे कॉन्शियस में क्या है, हमारी डीप, हमारे इनर फीलिंग्स हमारी क्या है, वो भी गॉड को पता होती हैं. तो ये Lancho का डीप फेथ था कि God is there everywhere, around us is God, and he can see everything, he knows about everything, and he can see what is there inside our heart, what is there in our conscience. Okay, इसीलिए उसने वो लेटर लिखा था कि गॉड है, गॉड ही उसकी अब हेल्प करेंगे. इसलिए जब उसको लेटर मिलता है तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि वो श्योर था कि उसके लिए लेटर आएगा. ओके, next question, what made him angry? So when finally he got the letter from God and he opened the envelope and he counted the money, so after counting the money he was very angry. So we have to tell that what made him angry, why was he angry? Answer, Lancho had requested God to send him 100 pesos. So in his letter that he wrote to God, he asked for 100 pesos. Okay, so उसने लेटर गॉड को क्यों लिखा था? उसने गॉड को लेटर लिखा था for getting some help, for some support, and in help what did he ask? उसने मांगे थे 100 pesos. तो उसने 100 pesos गॉड से लेने के लिए उसने लेटर लिखा था गॉड को, but he found only 70 pesos in the envelope. लेकिन जब उसने मनी काउंट
काउंट किए, व्हेन ही काउंटेड द मनी ही फाउंड आउट दैट देयर आर ओनली 70 pesos. ही डाउटेड ऑन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज दैट दे माइट हैव टेकन दैट 30 pesos. तो जब उसने काउंट करे पैसोज और उसको पता चला कि उसमें केवल 70 pesos है, तो उसको क्या डाउट हुआ? उसे डाउट हुआ कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने वो बाकी के वो रेस्ट अमाउंट जो है 30 pesos, वो रेस्ट अमाउंट उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ले लिया है, उन्होंने स्टोल कर लिया, उन्होंने चोरी कर ली है, वो उन्होंने उस में से 30 pesos चुरा लिए हैं, इसीलिए अब उस एनवेलप में ओनली 70 pesos बचे थे. डैट मेड हिम एंग्री, और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा एंग्री हो गया था, उसे इतना गुस्सा आ गया था कि उसे पैसों की इतनी ज़रूरत थी. उसने गॉड को लेटर लिखा था, गॉड ने उसे 100 pesos भेज भी दिए, लेकिन उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने पहले ही वो एनवेलप खोल लिया और उसमें से उन्होंने 30 pesos उन्होंने चुरा लिए. इस वजह से लैंचो इतना ज़्यादा एंग्री हो गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who does Lancho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? So we have to tell that Lancho was having very deep faith. He was having a complete faith. But we have to tell that his faith was in whom? Okay. And second, we also have to tell the sentences from the chapter that tell us about his faith. So हमें बताना है कि लैंचो का जो deep faith था वो किसके लिए था, और साथ में हम इस चैप्टर में से कुछ सेंटेंसेस हमें यहाँ कोट करने हैं जो सेंटेंसेस हमें इस बात को बताते हैं कि उसका डीप फेथ किस में था. आंसर, लैंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड. सो लैंचो का जो डीप फेथ था, कंप्लीट फेथ था, वो किसके लिए था? गॉड के लिए था. ही वॉज हैविंग अ डीप फेथ दैट गॉड इज देयर एवरीवेयर एंड गॉड कैन सी एवरीथिंग, इवन व्हाट्स देयर इन इनसाइड अस, इनसाइड आवर हार्ट, व्हाट इज देयर इन डीप आवर कॉन्शियंस. ओके, द सेंटेंसेस आर एंड द सेंटेंसेस फ्रॉम द चैप्टर दैट टेल अस अबाउट दिस. सो वी हैव टू कोट द सेंटेंसेस एंड दो सेंटेंसेस आर: all through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes see everything, even what is deep in one's conscience. So the sentences from the chapter हमने यहाँ कोट कर दिए हैं, और वो सेंटेंस क्या है कि पूरी रात लैंचो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था, और वो चीज़ क्या थी? हेल्प ऑफ गॉड. और ऐसा क्यों था? क्योंकि ये लैंचो का डीप फेथ था कि गॉड हर जगह है एंड गॉड कैन सी ईच एंड एवरीथिंग, इवन व्हाट इज देयर इन डीप इनसाइड वंस कॉन्शियस. तो ये लैंचो का फेथ था, और इसी फेथ की वजह से उसने गॉड को लेटर लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does the postmaster send money to Lancho? Why does he sign the letter God? So next question is कि after reading the letter written by Lancho for God, so that letter was read by the postmaster. So after reading the letter, the postmaster decided that now he will answer the letter. He will send the money to Lancho. So why did he decide so? Why did he write the letter? Why did he send the money to Lancho? And secondly, we also have to tell that why does he sign the letter as God. Okay, so हमें बताना है कि जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने लैंचो के लिए मनी क्यों भेजे, उन्होंने गॉड की तरफ से लेटर क्यों लिखा, और उस लेटर पे उन्होंने साइन किए थे. लास्ट में हमने पढ़ा था चैप्टर में, तो हमें बताना है कि उस लेटर में उन्होंने गॉड के नाम के साइन क्यों किए थे. ओके, लेट्स सी द आंसर. The postmaster doesn't want that Lancho's faith in God should break. So first reason that why did he decide that he will answer the letter? Why did he decide that he will send the money? So the reason is that the postmaster doesn't want that Lancho's faith in God should break. He wanted that the deep faith that he is having, the person who wrote this letter, so his deep faith that he is having in God should remain intact. Okay, तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जिस व्यक्ति ने ये लेटर लिखा है, इतने भरोसे के साथ, इतने विश्वास के साथ जिसने लेटर लिखा है, उस व्यक्ति का विश्वास बिल्कुल भी हिल जाए, ऐसा वो नहीं चाहते थे. He in fact feels proud that Lancho has such a great faith in God. और जो पोस्ट मास्टर थे वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे लैंचो का लेटर पढ़ने के बाद कि ऐसा भी पर्सन, ऐसा भी फेलो हो सकता है इस वर्ल्ड में जिसका गॉड में इतना डीप फेथ है कि उसने एक लेटर लिख दिया गॉड के नाम. So
ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। इसीलिए वो फाइनली डिसाइड कर देते हैं कि उस व्यक्ति का विश्वास, जो इतना गहरा विश्वास है गॉड में, वो बिल्कुल भी शेक नहीं होना चाहिए। इसीलिए ही डिसाइडेड दैट नाउ ही विल आंसर द लेटर, ही विल रिप्लाई द लेटर एंड ही विल सेंड द मनी दैट आर आस्क्ड इन द लेटर। ओके, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लेटर भेजेंगे, वो रिप्लाई करेंगे और वो मनी भेजेंगे जिसके लिए वो लेटर लिखा गया है। सेकंड हमें बताना था कि जब उन्होंने लेटर लिखा तो लास्ट में उन्होंने गॉड के नाम के, उन्होंने लेटर में साइन करते समय गॉड क्यों लिखा था, मतलब वो ये क्यों शो करना चाहते थे कि ये जो लेटर है ये एक्चुअल में गॉड ने भेजा है, जो मनी है वो गॉड ने ही भेजी है, ये चीज़ वो शो क्यों करना चाहते थे। He signs the letter God to make him believe that the letter and the pesos are sent by the God himself। तो उन्होंने लेटर पे जो गॉड साइन किए थे वो सिर्फ इसलिए किए थे ताकि लेंचो को पूरा विश्वास हो जाए कि वो जो पैसोज हैं और जो लेटर है वो एक्चुअल में गॉड ने खुद ने भेजे हैं। तो अगर वो गॉड के साइन नहीं करते तो लेंचो हो सकता था उसको लगे कि पता नहीं किसी और ने भेजे हैं, किसने भेजे हैं, किसी और ने मेरी हेल्प करी है। लेकिन पोस्टमास्टर चाहते थे कि लेंचो को यही लगे, उसका विश्वास यही बना रहे कि गॉड ने ही उसको लेटर लिखा है, उसका लेटर एक्चुअल में गॉड तक पहुंच गया था और गॉड ने लेटर पढ़ने के बाद उसका आंसर दिया है, गॉड ने उसके लिए पैसोज भेजे हैं। तो ये बात लेंचो के मन में बनी रहे, उसका ये विश्वास बना रहे, इसीलिए पोस्टमास्टर ने जो लेटर लिखा उस पर उन्होंने गॉड के साइन किए थे। इफ़ ही डजंट डू सो लेंचो माइट थिंक डिफरेंटली। तो पोस्टमास्टर को लग रहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है लेंचो के मन में कोई और बात आ जाए, वो कुछ और सोचे कि पता नहीं किसने भेज दिया, किसने मेरी हेल्प कर दी। हिज फेथ इन गॉड में शेक। और उस समय ऐसा भी हो सकता था कि उसका विश्वास जो था गॉड में, जो डीप फेथ उसके मन में था, वो थोड़ा सा शेक हो जाता, वो थोड़ा सा हिल जाता। और पोस्टमास्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। दैट वॉज द रीज़न ही डिसाइडेड दैट ही विल आंसर द लेटर, ही विल सेंड द मनी बट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, did Lenjo try to find out who had sent the money to him? Why not? So next question is, we have to tell that when Lenjo got the letter and what did he assume? He assumed that the letter is sent by God himself. So we have to tell that did he try to find out who had sent the money to him? And we also justify our answer if we are saying that yes he tried. So we have to tell why did he try, and if our answer is that no he didn't try, so we have to tell that why didn't he try to find out who sent the money। okay, so हमें बताना है कि क्या लेंजो ने बिल्कुल भी ट्राई किया पता लगाने का कि वो लेटर एक्चुअल में किसने भेजा है, वो 70 पैसोस किसने भेजे हैं। और हमें अपने आंसर के रीज़न देने हैं कि अगर हम यस कह रहे हैं हमें यस के रीज़न देने हैं, अगर हम नो कह रहे हैं तो हमें नो हमने क्यों बोला है हम उसके भी रीज़न देने हैं। ओके, आंसर, Lencho did not try to find out who had sent the money to him. So our answer is that Lencho didn't try. Okay, he was very sure that the letter is written by God himself. That's why he didn't try to find out who sent the money. It was because he had complete faith in God, and the reason is this, because he was having such a deep faith, he was having complete faith in God, and he was very much assured about this thing that God will write back to him. He therefore was utterly sure that God himself had sent the letter along with the money he asked for. तो इसीलिए उसका जो इतना डीप फेथ था, इतना जो उसका कॉन्फिडेंस था गॉड में, इसीलिए वो पूरा श्योर था कि गॉड उसको लेटर वापस लिखेंगे, गॉड उसके लेटर का आंसर देंगे, उसको मनी भेजेंगे। तो उसको पूरा विश्वास था कि ये मनी जो है गॉड ने ही भेजे हैं, इसलिए उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि मैं पता लगाऊं, मैं पूछूं कि ये लेटर कहाँ से आया है, किसने भेजा है, कैसे ये लेटर पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा। उसने बिल्कुल भी ट्राई तक नहीं किया क्योंकि ही वॉज वेरी मच श्योर दैट गॉड हिमसेल्फ हैड रिटर्न दैट लेटर एंड द गॉड हिमसेल्फ सेंड द मनी टू हिम, द मनी दैट ही आस्क्ड इन हिज फर्स्ट लेटर, द मनी दैट वाज नीडेड फॉर हिम। ओके, तो उसको पूरा विश्वास था कि वो लेटर लिख रहा है, लेटर गॉड तक पहुंचेगा, गॉड लेटर पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो वो पूरा श्योर था कि वो लेटर गॉड ने ही भेजा है, इसलिए उसने बिल्कुल ट्राई तक नहीं किया कि मैं पूछूं, मैं पता करूं कि ये लेटर कहां से आया है, कैसे आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who does Lancho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? So next question is, we have to tell that when Lancho counted the money and he found out that there were only 70 pesos, 30 pesos were missing according to him. So our question is, we have to tell that who does Lancho think who has taken the rest of the money? Rest of the money, those 30 pesos. So what was there in Lancho's mind, that who stole those 30 pesos? And we have to tell what is the irony in the situation. Okay, so हमें बताना है कि जो लैंचो ने जब मनी काउंट किए और जब उसको पता चला कि उसमें 100 पेसोस नहीं है बल्कि 70 पेसोस है, तो उसके दिमाग में इंस्टेंटली क्या आया कि गॉड ने तो 100 पैसों ही भेजे थे और जो 30 पैसों है वो किसने ले लिए, तो उसके मन में क्या डाउट आया. सेकेंडली हमें बताना है कि ये जो सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में क्या आयरनी है. अब बच्चों, आयरनी क्या होता है? Irony is a literary device. And what is irony? Irony means when we are saying something or when we are thinking something and what we are saying is the opposite from what the reality is. It is irony. Okay, so irony का मतलब होता है जब हम कुछ बोल रहे हैं, जब हम कुछ सोच रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं वो एक्चुअल में जस्ट ऑपोजिट है किस चीज़ से, जो कि रियलिटी है. तो जो रियल में जो है उसका जस्ट ऑपोजिट हम कर रहे हैं, उसका जस्ट ऑपोजिट हम बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, तो वो होता है आयरनी. ओके, सो इस सिचुएशन में हमें आयरनी बतानी है कि क्या आयरनी दी गई है इस सिचुएशन में. जब लैंचो को लग रहा था कि जो 30 पैसोज हैं वो पोस्ट ऑफिस स्टाफ में जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने चुरा लिए हैं, तो इस सिचुएशन में जो आयरनी यूज़ की गई है वो हमें एक्सप्लेन करनी है. ओके, लेट्स सी द आंसर. Lancho thinks that the rest of the money has been taken by the post office official. So what was the first thing that was there in Lancho's mind? What did he think? He thinks that the rest of the money, those 30 pesos, has been taken by the post office officials. The irony in the situation is that the post office officials contribute money for Lancho, yet he looks at them as crooks. And what is the irony? Irony ये है कि जो post office एम्प्लॉयज़ थे, जो स्टाफ मेंबर्स थे, उन्होंने ही वो मनी जो थी वो कलेक्ट की थी, उन्होंने ही वो 70 पैसों आपस में कलेक्ट करके उन्होंने कंट्रीब्यूट किए थे. और लैंचो को क्या लग रहा था? उसे लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो ही क्रूक्स हैं, वो ही डिसऑनेस्ट हैं और उन्होंने ही उसके 30 पैसों चुरा लिए हैं. सो दिस इज द आयरनी. ओके, सो व्हाट लैंचो वाज थिंकिंग, व्हाट वाज देयर इन लैंचोज माइंड वाज जस्ट द ऑपोजिट फ्रॉम द रियलिटी. सो व्हाट वाज द रियलिटी? रियलिटी क्या थी कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो थे उन्होंने आपस में मनी कलेक्ट किया था, उन्होंने कंट्रीब्यूट किए थे और वो एक्चुअल में लैंचो की हेल्प करना चाहते थे इसलिए. एंड व्हाट वाज लैंचो थिंकिंग? लैंचो को लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एक्चुअल में क्रूक्स हैं, डिसऑनेस्ट है और उन्होंने उसका मनी चुरा लिया है. सो दिस इज द आयरनी. आयरनी का मतलब हम जो सोचते हैं, हम जो कहते हैं या करते हैं वो जस्ट ऑपोजिट होता है रियलिटी से. दिस इज कॉल्ड आयरनी. ओके, सो दिस इज the irony that is presented here, that what Lancho was thinking was just the opposite from what the reality was. Okay, next question. Are there people like Lancho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. Next question is that after reading the chapter, after reading about Lancho, after reading about his character, we can make a character sketch of Lancho. So now what is there in your mind? Do you think that in the real world there are people like Lancho, or Lancho is a character that can be found only इन द स्टोरीज. ओके, तो आपको क्या लगता है कि जो लैंचो का कैरेक्टर है, क्या ऐसे व्यक्ति, क्या इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड में भी होते हैं, या लैंचो जैसे कैरेक्टर ओनली बुक्स में होते हैं, ओनली स्टोरीज में होते हैं? तो हमें अपना व्यू पॉइंट बताना है, हमें क्या लगता है हमें वो बताना है. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? साथ में हमें लैंचो का एक कैरेक्टर स्केच बताना है, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, हमें वो बताना है. और हमारी हेल्प के लिए हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो वी कैन यूज दीज वर्ड्स टू ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो. ओके, लेट्स सी द आंसर.
Yes, there are still people like Lancho in the world. So we can say that Lancho's character is a realistic one, and in the real world we can find some people, we can find some fellows who are just like Lancho only. Okay, so जो Lancho का कैरेक्टर है वो रियलिस्टिक कैरेक्टर है, और अभी भी हम रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं हमारे आसपास कुछ लोगों को जो कि Lancho जैसे ही एक्ट करते हैं. He is such a person who can go to any extent in his faith in God. And what was the basic characteristic of Lancho's character? That he was a person who was having such a deep faith in God that in his faith he seems to have no boundaries, no limitation, and he can go to any extent, and he actually goes so far that he wrote a letter to God. तो उसके मन में गॉड के लिए इतना डीप फेथ था, इतना कंप्लीट फेथ था कि वो अपने फेथ की वजह से किसी भी एक्सटेंट तक वो जा सकता था, वो कितने भी एक्सट्रीम पॉइंट तक जा सकता था. और एक्चुअल में उसने ऐसा किया, उसका इतना डीप फेथ था कि उसने गॉड को लेटर लिख दिया था इस विश्वास के साथ कि उसका लेटर गॉड तक जरूर पहुंचेगा. गॉड जो है वो उस लेटर को पढ़ेंगे और वो उसके लेटर का रिप्लाई भी करेंगे. He is resolute, determined and firm. And to describe something about his character, we can use some adjectives. We can say that he is a person who is resolute, he is determined and he is firm. Lancho is also naive, stupid and comical. And we can also say that Lancho is naive, he is a stupid little bit, and he is also a comical kind of fellow. Okay, so we can describe his character, what we can see in his character. Next question. There are two kinds of conflicts in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? So next question is that in the story, in the chapter, we have read that there are two kinds of conflict. What is conflict? Conflict means struggle. Okay, तो हमने पढ़ा है चैप्टर में दो तरह के struggle हैं. First struggle is between human and nature. So in the first conflict, there is one side human and the other side is nature. And the second conflict is between human themselves. Okay, so in the first conflict there is one side human and the other side is nature, and in the second conflict both sides are human beings. So second conflict is between humans themselves. How are these conflicts illustrated? So after reading the chapter, how can we illustrate that these conflicts we have read in the chapter? तो हमें चैप्टर में से इलस्ट्रेशन लेके हमें बताना है कि क्या हमने चैप्टर में पढ़ा है इस तरह से कि कहीं हमने स्ट्रगल देखा है, कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स. ओके, आंसर. The conflict between human and nature is illustrated in the form of hailstorm destroying Lancho's crops. So what is the first conflict that is there in the question? First conflict is between human and nature. Okay, so the first conflict, that is human and nature, is illustrated when in the form of hailstorm destroying Lancho's crop. Okay, तो जब वो जो hailstorm आया था, when the hailstorm was there and it destroyed Lancho's field completely, so it was a conflict. Okay, जो hailstorm है वो क्या है? That is a natural thing, it is a power of nature. Okay, and it completely destroyed Lancho's field. तो Lancho ने जो पूरे साल इतनी मेहनत की थी, उसने जो इतना हार्डवर्क किया था अपने फील्ड्स में, उसका सारा हार्डवर्क, उसकी सारी होप कि इस बार वो बहुत अच्छी फसल उसके खेतों में होगी, उसकी सारी होप, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर. ओके, सो दैट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. ओके, तो एक तरफ हेलस्टोन्स है, हेलस्टोन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक नेचुरल थिंग है, वो एक नेचर की पावर है. तो उस नेचुरल थिंग ने क्या किया? उसने ह्यूमन एफर्ट्स को, जो लैंचो पूरे साल अपने खेत में इतनी मेहनत कर रहा था, जो वो इतनी होप कर रहा था एक अच्छी फसल की, बहुत सारा मनी अर्न करने की, वो सारी उम्मीद, वो सारे हार्डवर्क को उस नेचर ने क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया. सो ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स. ओके,
He was looking for a good rain for his harvest, but the rain changed into hailstorm and he could not save his fields. So Lancho was expecting, he was hoping only for good rain, and it was raining, but suddenly weather changed. Suddenly there was a very strong wind and there was hailstorm. So Lancho को तो सिर्फ क्या चाहिए था, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक अच्छी बारिश होगी, उसके खेतों में जो पानी की ज़रूरत थी वो उस ज़रूरत उसकी पूरी हो जाएगी। लेकिन अचानक से क्या होता है, वेदर चेंज हो जाता है, ये नेचुरल पावर्स होती हैं और इसकी वजह से वहाँ पे एक हेल स्टॉर्म आ जाता है और उस हेल स्टॉर्म की वजह से उसके सारे खेत, उसकी सारी फसल, एवरीथिंग वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और वो अपने फील्ड्स को बचा भी नहीं पाता है। The power of nature tore down his hope of a good harvest, and that powerful hailstorm, or we can say that powerful nature, destroyed everything, his hope, his hard work, as well as his entire fields. Okay, so उस nature ने क्या किया, उसके fields destroy कर दिए, साथ ही साथ उसकी जो hope थी, उसका जो hard work था, सभी कुछ उस nature ने, उस hailstorm ने destroy कर दिए थे। So this is the first conflict that is there in the question, the conflict between human and nature. Okay. The other conflict is illustrated by Lancho, and the second conflict, that is between human beings themselves. So that conflict is illustrated by Lancho. It is in his not believing in the post office officials' honesty, and this conflict can be seen when Lancho did not believe in post office officials' honesty. They helped him by sending him money, but he thinks them crooks and dishonest persons. तो जो post office officials थे, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे, ये वो ही लोग थे जिन्होंने लैंचो की हेल्प करने के लिए मनी कलेक्ट किया था, कंट्रीब्यूट किया था और लैंचो की हेल्प के लिए उन्होंने वो मनी लैंचो को सेंड किया था। लेकिन लैंचो को क्या लगता है, वो उनकी इस बात पे बिल्कुल डाउट करता है, उनकी ऑनेस्टी पे डाउट करता है और उसको लगता है कि वो क्रूक्स हैं, वो डिसऑनेस्ट पीपल हैं, वो क्रिमिनल हैं और उन्होंने उसके 30 पैसों चुरा लिए हैं। सो दिस इज द सेकंड कॉन्फ्लिक्ट दैट इज देयर बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स। तो जो पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल हैं वो उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं, उसकी हेल्प करने के लिए उन्होंने आपस में मनी कलेक्ट करके, कंट्रीब्यूट करके उसको दिए। लेकिन लैंचो को लग रहा है कि नहीं, वो बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है या वो बिल्कुल भी ट्राई तक नहीं कर रहा पता लगाने की कि किसने रुपए भेजे हैं, किसने उसकी हेल्प की है, बल्कि वो क्या कर रहा है, उसके मन में सिर्फ ये डाउट आ रहा है कि पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट पीपल हैं और उन्होंने ही उसके पैसे चुरा लिए हैं। सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज देयर बिटवीन human beings. Okay, so students, we have completed all the questions that are given in the chapter. I hope the chapter and all the questions, everything is very much clear to you all. So now we will meet in the next video when we will start with our next chapter or next poem. So see you in the next video. Thank you.